welcome to all in this YouTube channel Being Engineer. Today we will see the Gauss law and Gauss divergence theorem. Gauss law and divergence theorem. Gauss divergence theorem. This is the today's topic of discussion. So firstly we discuss what is Gauss law. According to the Gauss law, for any closed object like a cylinder is a closed object, the charge inside this particular cylinder, let's say this charge is Q, and the flux which is crossing this particular surface of the cylinder is, let's say, psi. So according to the Gauss law, the charge enclosed by the body is equals to the flux crossing the surface of the body. So we can say that psi is equals to Q enclosed. Now we have to see how we can define the flux linkage psi and the charge enclosed by the body. So there is a term which is very popularly known as electric flux density. Electric flux density. This electric flux density we have to see in detail because this is a very important parameter over here. Electric flux density, capital D, is defined as the rate of change of flux per unit area in general term. Otherwise we can write differential flux divided by differential surface, limit differential surface tending towards 0. This is the definition of electric flux density. So D is equals to d psi over ds. Now if we further resolve this equation, then I can write d psi is equals to d dot ds. Okay, so d psi is equals to d dot ds with the help of this definition. Now taking the surface integral, closed surface integral on both the sides, I can write closed surface integral d psi is equals to closed surface integral d dot ds. Now as we know that closed surface integral of d psi is nothing but the psi, so psi is equals to closed surface integral d dot ds. Now let's say this is equation number 1 and this is equation number 2. Okay, so psi is equals to closed surface integral d dot ds. यहाँ तक हम पहुंच गए. अब हम चार्ज को डिफाइन करेंगे. पिछली क्लासेस में मैं डिस्कस कर चुका हूं, तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. सो उसमें से मैं अभी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन ले रहा हूं. यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? रो वी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी वी लिमिट डी वी टेंस टू 0. ओके, रो वी इज इक्वल्स टू लिमिट डी क्यू बाय डी वी टेंस टू 0, एंड फ्रॉम दिस we can write dq is equals to rho v dv. Now if we use the volume integral on both the sides, what can I write? I can write q is equals to integral rho v dv. This is, let's say, equation number 3. अब यहाँ पे गौर करने की जरूरत है. देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमने कहा था चार्ज एनक्लोज्ड बाय द बॉडी इज इक्वल्स टू फ्लक्स क्रॉसिंग द सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी साई और क्यू बराबर है. और साई की एक डेफिनेशन हमने इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा दी और क्यू की एक डेफिनेशन हमने इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा दी. तो चूंकि साई और क्यू बराबर हैं तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ध्यान में रखते हुए हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. यानी अब हमारे पास इक्वेशन होगा साई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड. साई की डेफिनेशन क्या मिली? क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस. क्यू की इंफॉर्मेशन क्या मिली हमें? इंटीग्रल रो वी डी वी. नाउ दिस इज अ very important equation which is known as
इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। क्या कहते हैं इसे? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। याद रखिए अभी तक हमने डाइवर्जेंस थ्योरम की यहाँ पर चर्चा नहीं की है, अब हम जा रहे हैं डाइवर्जेंस थ्योरम को इंट्रोड्यूस करने। और जैसा कि मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम आपको लेक्चर 1 में बेसिकली बताया था कि इट हैज़ अ वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यूज़ होता है, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी यूज़ कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डाइवर्जेंस थ्योरम we have seen that the closed surface integral of any vector field is equals to the volume integral of the divergence of the same vector field. Is it okay? Once again I am stating this divergence theorem. Closed surface integral of any vector field is equals to the volume integral of the divergence of the same vector field. ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वेक्टर फील्ड ए की बात हो रही है, ओके, यहाँ पे वेक्टर फील्ड किसकी बात हो रही है? ए की। लेकिन अगर आप पिछली स्लाइड से देखें, यहाँ पे हमने वेक्टर फील्ड कौन सी इंट्रोड्यूस की थी? वेक्टर डी, विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे हमने जिस वेक्टर फील्ड की बात की वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर डी। तो हम ए की जगह डी के लिए डाइवर्जेंस थ्योरम लगाना चाहते हैं। मैं इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, divergence theorem, which is having a wide area of application. Divergence theorem. Okay, now we can apply this divergence theorem for the vector d. So I can write integral d dot ds, vector d of course, is equals to integral of del dot d dv. okay, हमने कुछ नहीं किया, डाइवर्जेंस थ्योरम लिया और उसको वेक्टर डी के लिए इंप्लीमेंट कर दिया। वेक्टर डी क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर है। ठीक है, यानी मैं चाहूं तो उसको यहाँ पे लिख सकता हूं डाइवर्जेंस थ्योरम, मैं डी टी लिख देता हूं शॉर्ट में, ऑन वेक्टर डी। इजंट इट? ऊपर भी डाइवर्जेंस थ्योरम का इक्वेशन लिखा है, नीचे भी डाइवर्जेंस थ्योरम का इक्वेशन लिखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर हमने जनरल वेक्टर ए के लिए उसे लिखा है और नीचे हम वेक्टर डी के लिए उसे लिख रहे हैं, और यहाँ वेक्टर डी एक स्पेशल वेक्टर है विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर। ओके, सो हम पिछली स्लाइड में 3 इक्वेशन तक पहुंचे थे। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये जो अभी आपके सामने लिखी है इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं। ठीक है, आप इसे क्या नाम देंगे? आप इसे नाम देंगे डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन वेक्टर डी या डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इक्वेशन 4 और 5 को गौर से देखिए। तो 4 और 5 को यदि हम गौर से देखें तो देखिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड कैसे हैं? सेम, क्योंकि इक्वेशन 4 के लेफ्ट हैंड साइड में भी हम क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कर रहे हैं, और इक्वेशन 5 के भी लेफ्ट साइड में हम क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ही कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों के राइट साइड भी इक्वल है। तो दोनों के राइट साइड इक्वल हैं, देन आई कैन राइट डेल डॉट डी डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रो वी डी वी, और दोनों तरफ से वॉल्यूम इंटीग्रल को इग्नोर करने पर, नलीफाई करने पे, कैंसिल नहीं करना है, इसे काटना नहीं है, इसे मैथमेटिकली रॉन्ग माना जाता है, इंटीग्रल से इंटीग्रल कैंसिल, है ना। तो डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो वी। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, लेट्स से इक्वेशन नंबर 6, एंड इट इज नोन एज the differential form or point form of Gauss law, point form of Gauss law। ठीक है, this is called differential form or point form of the Gauss law, del dot d is equals to rho v। okay, now this is something which is very very important, और इसी को फर्दर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अब इक्वेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जनरेट करके देने वाली है। डेल डॉट डी बराबर रो वी। ठीक है, एक रिलेशन की मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और वो है कैपिटल डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई। ठीक है, इस इक्वेशन को जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन के नाम से। इट इज अ वेरी वेरी पॉपुलर इक्वेशन, खासकर जब हम मटेरियल साइंस की बात करते हैं। हम मटेरियल साइंस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की
परमिटिविटी की बात करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं, तो इस इक्वेशन का बहुत जिक्र आता है। मशीन में जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर के लॉस टेंजेंट की बात करते हैं, तो इस इक्वेशन का जिक्र आता है। तो ये इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है from the point of view of material science and from the point of view of the material of the machines. So ब्रैकेट में मैं इसे लिखना चाहूंगा constitutive equation, constitutive equation, ठीक है। अब ये constitutive equation किसके लिए है, थोड़ा सा और मेंशन कर देते हैं, for dielectric, constitutive equation for dielectric material, to be more specific, isn't it? And del dot D is equals to rho V. Just now we have derived, see in the last slide, this is the differential form or point form of the Gauss law. So I can significantly write point form of Gauss law. Okay, I hope everybody is getting. So del dot D is equals to rho V, D is equals to epsilon E. Now very simply we have to put the value of D in this equation, ठीक है। देखिए हमें क्या मिलता है, del dot epsilon E is equals to rho V, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, del dot E is equals to rho V by epsilon। तो कई बार ये इक्वेशन भी डिराइव करने के लिए पूछा जाता है, बोलते हैं प्रूव दैट del dot E is equals to rho V by epsilon। तो पहचानने में कभी कभी दिक्कत होती है, ये कुछ और दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये गॉस लॉ ही है, गॉस लॉ का पॉइंट फॉर्म डिफरेंशियल फॉर्म ही है, बस D बराबर एप्सिलॉन ही रखना है, एप्सिलॉन को राइट में डिवाइड कर देना है, ये आ गया। तो इस इक्वेशन को कुछ और नाम नहीं देंगे, इस इक्वेशन को हम गॉस लॉ के पॉइंट फॉर्म के नाम से ही जानेंगे, ठीक है। del dot E is equals to rho V by epsilon। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजोल्यूशन आ रहा है, समझ लीजिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं और उसको फिर सब्सटीट्यूट करेंगे, E is equals to minus of del V। So in the very first lecture we have discussed curl, gradient, Laplacian and divergence with all of you. So electric field intensity I have given the example as a gradient। पोटेंशियल अपने आप में एक चीज है, और उस पोटेंशियल का ग्रेडियंट यदि आप निकाल लेते हैं तो वो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्क सिर्फ इतना है कि पोटेंशियल का ग्रेडियंट जिस डायरेक्शन में बढ़ता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बढ़ती है, और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहली बात पोटेंशियल, दूसरी बात पोटेंशियल का ग्रेडियंट, और पोटेंशियल के ग्रेडियंट का नेगेटिव साइन लिया तो क्या बनी, फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल का ग्रेडियंट बढ़ेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बढ़ेगी, या ये भी कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल का ग्रेडियंट घटेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। ओके, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको भी ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें, मेंशन करना चाहें, तो दिस इज नथिंग बट द definition ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E vector मैं लिख देता हूँ कि E is a vector, potential is a scalar quantity, when you take the gradient of this it becomes vector, because we have seen 4 kinds of operation. Vector to vector operation was curl, vector to scalar operation is divergence, scalar to vector operation is gradient, and scalar to scalar operation is Laplacian. So what we have to do, we have to just substitute the value of E in the previous equation. So I will get del dot minus of del V is equals to rho V by epsilon. Okay, del dot minus of del V is equals to rho V by epsilon। और इस इक्वेशन को फर्दर लिखते हैं, देखिएगा कैसे, del dot minus of del V is equals to rho V by epsilon। Now I can write minus of del square V is equals to rho V by epsilon. I can also write del square V is equals to minus rho V by epsilon. Now this is a very popular equation known as Poisson's equation। याद रखिएगा नाम से, क्योंकि डिराइव करने के लिए ये आता है, ठीक है। दिस इज Poisson's equation, ठीक है।
del square v is equals to minus rho v by epsilon. Suppose you want to express in words, तो आप कैसे लिखेंगे? del square is nothing but the Laplacian operator. ठीक है, del ऑपरेटर जब डॉट प्रोडक्ट के साथ आता है तो डाइवर्जेंस है, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आता है तो कर्ल है, ना डॉट ना क्रॉस तो फिर सिंपल एल्जेब्रिक गुणा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ग्रेडियंट है. और जब वो डेल स्क्वायर है तो इट इज कॉल्ड अ लैप्लासियन ऑपरेटर. यू कैन ऑल्सो राइट डेल डॉट डेल, नो प्रॉब्लम. डेल डॉट डेल वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो वी बाय एप्सिलॉन. सो व्हाट वी हैव टू राइट ओवर हियर, लैप्लासियन ऑफ पोटेंशियल is defined as the ratio of volume charge density with permittivity. ये है इसका एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं. अब यहां पे एक बात मैं जिक्र करना चाहूंगा. सपोज द फील्ड इज चार्ज फ्री. सपोज फील्ड इज चार्ज फ्री. फील्ड नहीं, सॉरी, रीजन कहना चाहिए, है ना, नहीं तो आप बोलेंगे बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ सकती है. तो अगर फील्ड है तो चार्ज तो होगा ही होगा. तो वी हैव टू करेक्ट दिस थिंग. ठीक है, सपोज रीजन इज चार्ज फ्री. सो व्हेन द रीजन इज चार्ज फ्री इट मींस देयर इज नो चार्ज एट ऑल. और अगर चार्ज नहीं है तो वहां ना तो लाइन चार्ज डेंसिटी का अस्तित्व है, ना तो वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी का अस्तित्व है, और ना ही वहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का अस्तित्व है. क्योंकि जब चार्ज ही नहीं है तो आप वहां पे लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जैसे टर्म्स को डिफाइन नहीं कर सकते. तो इसका मतलब रो वी यहाँ जीरो हो गया, और रो वी जैसे ही जीरो हुआ तो हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू जीरो. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन नोन एज लैप्लास इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन को हम किस नाम से जानते हैं, लैप्लास इक्वेशन. बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि जब आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पे जाएंगे तो ना केवल आप पोटेंशियल निकाल पाएंगे बल्कि पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी से सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल पाएंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी से चार्ज निकाल पाएंगे, और फाइनली आप कैपेसिटेंस भी डिराइव कर सकते हैं. मतलब आप समझिए कि लाप्लास इक्वेशन से हम क्या क्या चीजें डिराइव कर सकते हैं, पोटेंशियल V, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D, सरफेस चार्ज डेंसिटी rho s, चार्ज Q एंड कैपेसिटेंस C. ये सब के सब लाप्लास इक्वेशन के बाय प्रोडक्ट कहे जा सकते हैं इफ यू आर एबल टू सॉल्व द लाप्लास इक्वेशन. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लाप्लास इक्वेशन को मैं थोड़ा सा एक्सपांड करना चाहूंगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही. डेल स्क्वायर V इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, सो आप डेल स्क्वायर वी को क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल वी इज इक्वल्स टू जीरो. और डेल की डेफिनेशन क्या है, डेल की डेफिनेशन डेल बाय डेल एक्स ए एक्स, डेल बाय ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड, इस तरह से लिखते हैं. मैं यहाँ सिग्मा लगा देता हूँ. सिग्मा का मतलब है समेशन, यानी डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड, ये मतलब हो गया इसका. और डॉट, अब अंदर वाले डेल का भी यही मतलब है, क्या, डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड. तो यहाँ पे भी मैंने सिग्मा लगा दिया, और यहाँ पोटेंशियल है. ओके, तो व्हेन यू डू द डॉट प्रोडक्ट, as we know that I dot I equal to J dot J equal to K dot K is equals to 1. Similarly, AX dot AX equal to AY dot AY equal to AZ dot AZ is equals to 1. Cylindrical में बात करेंगे तो A rho dot A rho is equals to A phi dot A phi is equals to AZ dot AZ is equals to 1. Spherical में बात करेंगे तो AR dot AR is equals to A theta dot A theta is equals to A phi dot A phi is equals to 1. So we know this thing. Right now we are talking about the Cartesian coordinate. So when we are going to multiply these two terms, this is basically del square del x square. ठीक है, ax dot ax 1 हो जाएगा प्लस del square by del y square प्लस del square by del z square, और v तो सभी में आएगा तो del square v by del x square del 2v by del y square del 2v by del z square is equals to 0. Now this is the equation, you can say that this is the equation of Laplacian in Cartesian coordinate. Okay, equation of Laplacian in Cartesian coordinate. Cartesian coordinate में ये Laplacian का equation हो गया. equation of Laplacian, बल्कि मुझे कहना चाहिए Laplace equation. ठीक है, Laplace equation in
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो आइए अब हम एक बार सब चीज़ों को रिवीजन देख लेते हैं, क्या क्या हमने आज की क्लास में देखा है। सबसे पहले गॉस लॉ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस लॉ के मुताबिक चार्ज एनक्लोज्ड जो होता है वो फ्लक्स लिंकेज के बराबर होता है, यानी जो भी बॉडी होती है उसमें जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा उसकी सरफेस से जो फ्लक्स जाएगा उसके बराबर होगा। फिर हमने देखा डी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी साई बाई डी एस, डी साई इज इक्वल्स टू डी डॉट डी एस। फर्दर हमने इंटीग्रल किया तो साई इज इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन which we will use in numerical solution, equation number 2. Similarly, volume charge density की definition हमने देखी, differential charge per unit volume and Q can be defined as the volume integral of the volume charge density according to the equation number 3. Then फिर हमने देखा कि चार्ज की ही दो परिभाषाएं हमने बता दी, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने के टर्म्स में और एक हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के टर्म्स में। तो जब चूंकि हमारा फ्लक्स लिंकेज चार्ज एंड क्लोज के बराबर है, यानी डी डॉट डी एस का क्लोज सरफेस इंटीग्रल बराबर होगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज आल्सो कॉल्ड द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। ओके, नाउ डाइवर्जेंस थ्योरम किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द डाइवर्जेंस थ्योरम, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द सेम वेक्टर। फिर हमने उसको वेक्टर डी के लिए लगा दिया। वेक्टर डी के लिए हमने लगाया तो हम उसको क्या कहेंगे? डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर डी। फिर हमने इक्वेशन 4 और 5 के लेफ्ट साइड सेम थे तो राइट को इक्वेट किया तो डेल डॉट डी बराबर रो वी मिला, विच इज कॉल्ड अ पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ जो हमें मिला उसमें डी की डेफिनेशन हमने एप्सिलॉन ई मटेरियल साइंस के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से हमने उसको सब्सटीट्यूट किया और हमें मिला डेल डॉट ई बराबर रो वी बाय एप्सिलॉन, विच इज अगेन नोन एज द गॉस लॉ पॉइंट फॉर्म। देन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, negative gradient of potential minus del V, we have substituted over here. Then del dot minus del V is equals to rho V by epsilon, which is further written as del square V is equals to minus rho V by epsilon. Very important equation, Poisson's equation. Now, if the region is charge free, the charge will be zero. Then there will be no question, no existence of line charge, surface charge, and volume charge density. All will be zero. So del square V equal to zero, which is none other than the Laplace equation, a very important equation which we are going to use in the next class in solving some numerical kind of problems also. So after solution of the Laplace equation, you will get the potential, you will get first thing potential, then electric field, then electric flux density, then surface charge density, then charge, and of course the capacitance as well. Then how can we express this Laplace equation in Cartesian coordinate? We have just substituted the value of the del operator, differential vector operator, multiplied it, and the final outcome is del 2v by del x square plus del 2v by del y square plus del 2v by del z square is equals to 0, which is none other than the Laplace equation in Cartesian coordinate system. So this is the today's topic which we have discussed. Gauss law we have discussed, the divergence theorem, we have discussed the Gauss divergence Gauss law divergence theorem, then Gauss divergence equation, then point form of Gauss law, integral form of the Gauss law, Poisson equation, and Laplace equation.